Today we are going to discuss differential calculus. Differential calculus focuses on the rate of change in analyzing a situation. Two concepts that are important in the study of differential calculus are limit and continuity. First, we will discuss the concept of limit. The limiting value of a function when it exists as independent variable approaches some specific real number is called a limit. In the behavioral equation, we studied that whenever independent variable changes in response to change in independent variable, dependent variable also changed. What is the limit of change in the function? This is called the limit. If let's suppose we have a consumption function, we say that consumption is a function of income. Here income is an independent variable and consumption is dependent variable. Whenever income changes in response to change in income, consumption also changes. But how much change occurred in consumption as the income changes? What is the limiting value of change in consumption function? This is called the limit. For an example, we have y is a function of x equals to 3x squared plus 2x minus 10. This is the function. Y is a function of x equals to 3x squared plus 2x minus 10. The value of y corresponding to an increasing sequence of value for x are shown as when x equals to 0, the value of y equals to minus 10. When x equals to 1, the value of y equals to minus 5. When x is equals to 2, the value of y equals to 6. So and so forth. जैसे जैसे आपके पास x increase होता जा रहा है, the value of y is also increasing. It means whenever x approaches to infinity, y also approaches to infinity. Also from the left hand side अगर हम देखें x को हम -1, -2, -3, तब हम x की values को substitute करते जा रहे हैं. y -9, -2, 11, 30. Again y is approaching to infinity. Means from both right and left hand side, the values of y approaches to infinity. The limit of a function equals to infinity. If the value of a function approaches the same number L, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, as x approaches to c, कोई भी रियल नंबर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में जो उस पर डिपेंड कर रहा है, द डिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेस टू एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, देन लिमिट इक्वल्स टू एल. ईदर डायरेक्शन मीन्स अगेन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड. अगर दोनों साइड से फंक्शन एक ही वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अगर हमने कहा x कांस्टेंट इक्वल्स टू c है, पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर उसकी x अप्रोच कर रहा है c को, तो द वैल्यू इज लेस देन c और द वैल्यू इज ग्रेटर देन c. हम दोनों साइड से जब उसको रख के c के ऊपर लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन को सेम लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए. देन वी कैन से दिस इज द लिमिट ऑफ अ फंक्शन. In order to determine limit x की power cube when x approaches to 2, this is the function of x. हमने कहा अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? This function will approaches to 8. ठीक है, डायरेक्टली हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 8 निकल के आ रही है. और अगर अब आप इसको टेस्ट करें फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट एंड x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम द राइट. जब हम लेफ्ट से इसको अप्रोच कर रहे हैं 7.98 मीन्स जैसे जैसे ये 2 को अप्रोच कर रहा है ये 8 की वैल्यू को अप्रोच कर रहा है. अगेन फ्रॉम द राइट हैंड साइड जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है 2 को, इसी तरीके से जो फंक्शन ऑफ x है द वैल्यू ऑफ y अप्रोचेस टू 8. इट मीन्स द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल्स टू 8 when x is approaches to 2. The second concept is about continuity. What is continuity? In an informal sense, a function is described as continuous if it can be sketched without lifting pen from the paper. हमने कहा बगैर हमने पेपर से पेन उठाए बगैर अगर किसी फंक्शन को स्केच कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास दिस इज
अ कंटिन्यूअस फंक्शन। विदाउट लिफ्टिंग अ पेन हमने ये फंक्शन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर मैं पेन को उठाए बगैर इसको ड्रॉ कर लूं, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बट आई कांट ड्रॉ दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है। इसको मैं पेन को लिफ्ट किए बगैर नहीं ड्रॉ कर सकती, मुझे पेन उठाना पड़ेगा, then I can draw this function. It means this is discontinuous function, इसमें continuity नहीं है. In a similar way, this is a continuous function and this is not a continuous function. These are the informal sense we can say that these functions are continuous and these functions are not continuous or discontinuous functions. A more formal definition of the property of continuity follows. A function is said to be continuous. अब फॉर्मली हम किस तरीके से फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a अगर फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू a फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और सेकेंडली उसकी लिमिट एक्सेस करनी चाहिए। When x approaches to a तो फंक्शन उस a की वैल्यू पे डिफाइंड भी होना चाहिए और सेकेंडली उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। To understand this concept, consider this example. This is the function we have already discussed. X की पावर 3, y is a function of x. x की पावर 3 है, हमने कहा कि अगर हम x की वैल्यू कहते हैं कि अप्रोच करेगी 2 को, तो फंक्शन की वैल्यू 8 को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको x की जगह 2 को सब्स्टिट्यूट करें तो फंक्शन डिफाइंड है इस फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, और लिमिट भी हमारे पास निकल के आ रही है, तो इट मीन्स कि दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। बोथ ये डिफाइंड भी है फॉर x की वैल्यू 2 के लिए और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, therefore we are concluding that this is a continuous function. Consider this example, x square minus 9x minus 3. Is this a continuous function or discontinuous function? First of all, हमने कहा कि if x approaches to 3 for this value of x, ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं, अगर मुझे ये देखना है कि फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, मैं डायरेक्टली x की जगह अगर x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन फॉर x इक्वल्स टू 3 अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। आप इसको फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, यानी यहाँ पे अगर आपके पास x की वैल्यू इक्वल्स टू 3 होगी तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑल्दो अगर हम इसकी लिमिट देखें कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। आपने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 9 का एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम इस पे लगाएं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। जब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी इसका मतलब यह है कि व्हेनेवर एक्स अप्रोचेस टू, जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि वो अप्रोच कर रहा है उस चीज को, ठीक है। जब एक्स अप्रोचेस टू 3 है तो फंक्शन अप्रोचेस टू 6 है। इसकी जगह अगर आप इसको दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका कॉन्सेप्ट है, आप उसको भी अगर सब्स्टिट्यूट करके देखो, इंस्टेड के आप एग्जैक्टली 3 को सब्स्टिट्यूट करो, आप 2.999 करो, और इसी तरीके से, तो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 6 को अप्रोच कर रही होगी फ्रॉम बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको चेक कर सकते हो, आप 3.5 से वैल्यूज लेके 3.5, 3.2, 3.1, 3.001,
तो वो फंक्शन 6 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। इसी तरह 2.5, 2.7, 2.9 और फिर आप जब उसको 3 के करीब x की वैल्यूज को लेके जाओगे तो फंक्शन 6 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। यानी सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसकी वैल्यू निकाल दी कि ये फंक्शन जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, व्हेन x अप्रोचेस टू 3 ये 6 को अप्रोच करेगा। लेकिन एग्जैक्टली जब हमने कहते हैं कि x इक्वल्स टू 3 तो उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उस पॉइंट पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। Although the limiting value exists, but function is not defined at the particular value of x, that is 3. तो continuous function ये नहीं होगा। It means this function is discontinuous at x equals to 3. तो इसको आप क्या कंक्लूड करोगे, डिसकंटिन्यूअस कंक्लूड करोगे अगर वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो। These are some laws for calculating the limit of a function. The first one is the sum. Limit of a sum is equals to the sum or of a limit. आपको दो फंक्शंस हैं, उनमें समीशन का आपके पास साइन है, तो उसका लिमिट का क्या वो होगा आपके पास कि आपने उसकी दोनों की लिमिट लगा देनी है दोनों फंक्शंस पे, और उसका सम जो होगा वो इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द सम ऑफ द फंक्शन होगा। Again, this limit of a difference equals to the difference of a limit. The second law, the second property. The third one is, here we have C is a constant and function of x. The limit of a constant time of function is equals to the constant time the limit of the function. ठीक है, कांस्टेंट की तो लिमिट हमें पता है कांस्टेंट के बराबर ही है, तो लिमिट ऑफ द कांस्टेंट टाइम फंक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगेन द फोर्थ वन इज अबाउट द प्रोडक्ट रूल। लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट। इट्स टू सिंपल, आपने दोनों फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई कर दी। द लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट। Limit of the quotient is equals to the quotient of the limit. Here we have the quotient, तो उसकी लिमिट क्या होगी कि आपने अगेन फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ gx दोनों पे लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन there is a condition provided that आपका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है is not equals to 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। Therefore we have the limit of a quotient is equals to the quotient of the limit provided that denominator is not equals to 0. These are some rules and properties. अब वन बाय वन हम इसको चेक कर लेते हैं। Here we have a function limit 2x plus 5, ठीक है, where x approaches to 3. अगर x अप्रोच करेगा 3 को तो हमारे पास लिमिट हमने दोनों पे अप्लाई कर दी। लिमिट 2x x अप्रोचेस टू 3 प्लस लिमिट 5 x अप्रोचेस टू 3। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टाइम फंक्शन है, तो 2 लिमिट x, क्योंकि लिमिट जो होगी वो आपकी फंक्शन पे अप्लाई होगी, कांस्टेंट की लिमिट जो होगी वो कांस्टेंट इटसेल्फ है। आपने इसकी जगह x की जगह 3 रखा, सब्स्टिट्यूट किया, 2 3s are 6 plus 5 11. This is the limit of this function. Here another example, limit 5x square where x approaches to 3. Again we have constant time of function property 5 limit x की power 2 x approaches to 3. तो हमारे पास जो लिमिट ऑफ फंक्शन होगा फंक्शन रेज टू एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी जो आपके पास है, तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ अ लिमिट आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 45। 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 सम ऑफ फंक्शंस है, सम और डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन जो आपके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने तमाम फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट को अप्लाई कर दिया। अगेन कांस्टेंट टाइम फंक्शन आ गया आपके पास, 2 को आपने बाहर निकाल दिया, लिमिट जो फंक्शन पे अप्लाई हो गया 3 लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, और लिमिट जो कांस्टेंट की है वो अगेन वही आपके पास कांस्टेंट इटसेल्फ है। तो आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आएगी वैल्यूएशन के बाद दैट इज इक्वल्स टू 236। The limit of a product is equals to the product of the limit. ठीक है, x approaches to 2
आपने दोनों फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x की पावर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x अप्रोचेस टू 2। जब आप इसको 2 करोगे, 2 2 4, अंडर रूट 4, 2 की पावर 3, एक्सपोनेंट से इसको रेज कर देंगे एंड इसको जब आपने इसका अंडर रूट वैल्यू लोगे तो 2 इक्वल्स टू 2, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो 16 आई है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। Okay, this is another example. Evaluate limit function of x. We have two functions. ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, माइनस 10x माइनस 24। काफी सारी प्रॉपर्टीज इसमें जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, कांस्टेंट टाइम द फंक्शन, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन एंड आल्सो अ क्वोशिएंट रूल। x अप्रोचेस टू 0, व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब आपने इसमें x की जगह तमाम पे आपने लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है, और x की जगह जब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा -24। द लिमिट ऑफ अ क्वोशिएंट इज अ क्वोशिएंट ऑफ द लिमिट प्रोवाइडेड दैट लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर आपका इक्वल्स टू 0 नहीं आया था, इसीलिए हमने इसको इजीली कंप्यूट कर लिया। थैंक यू।